everyone, welcome back to a brand new episode of Soma Speaks. आज के एपिसोड की अगर हम बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं और कुछ नहीं तो जब भी इस चीज़ के बारे में बात होती है तो छुप के देखना या किसी भी तरीके से एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है ही है, या तो बहुत तबाही मचा रहा है या बहुत हैप्पीली चल रहा है, जो कि है एक रिलेशनशिप. अब either you are a girlfriend, boyfriend, husband, wife, सास से नहीं बनती है, कोई अच्छा लगता है कोई नहीं अच्छा लगता है, शादीशुदा हो. I mean there are plenty of things, plenty of disasters and plenty of good things that can happen in this umbrella called relationship. और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के लिए ना हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल उस चीज़ को इतनी सरलता से एक्सप्लेन कर सके. इवन इन माई एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप कोचिंग, इनसे मिलने के बाद मैं ये बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक द रिलेशनशिप्स दैट आई डील विद आर वेरी इमेच्योर और बहुत छोटे हैं, बट द रिलेशनशिप स्टोरीज दैट शी शेयर्स और जो चीज़ें वो आज बात करने वाली है, they are something which really makes your mind think twice before entering and being in a relationship, and also how wrong you are actually taking this रिलेशनशिप. सो आज की जो हमारी गेस्ट है, आपने बहुत इनको इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देखा होगा. हर नेम इज नेहा कुमरा. कोच एट हार्ट के नाम से इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, एंड इट्स इयर्स ऑफ हर एक्सपीरियंस दैट शी विल बी शेयरिंग विद अस टुडे. वेलकम टू सोमा स्पीक्स मैम. Hi, how are you doing? I am very good. How are you? Good. Good to be here. I am so happy to have you here. हमारी कन्वर्सेशन पहले भी हो चुकी है, बट आज ऑफिशियली इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाना आई एम वेरी एक्साइटेड. और साथ ही साथ मुझे पता है कि अभी ऑडियंस को क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या ब्लास्ट ऑडियंस के ऊपर होने वाला है. सो अगर हम बात करें, सबसे पहले द रीजन दैट वी मेट वाज सोशल मीडिया. Absolutely. एंड द रीजन दैट पीपल आर एबल टू सी us is social media. I would want to know from you, ये social media जब पहले नहीं होता था तो relationships मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक अलग इंटेंसिटी पे होते थे, अलग तरीके से शुरू होते थे, चलते थे. सोशल मीडिया के आने के बाद रिलेशनशिप में बैड पॉइंट्स भी ऐड हुए हैं, गुड पॉइंट्स भी ऐड हुए हैं. सो एज अ रिलेशनशिप कोच, माई क्वेश्चन टू यू वुड बी, हाउ इज सोशल मीडिया playing a drastic role, or how social media is impacting the relationship of today? First of all, I would like to thank you to bring me here and allow me to share my experiences, my journey with everyone. And through your podcast, I'm sure a lot of people will understand this podcast. People will understand what simply a relationship can be. It's not rocket science. It's just a simple thing to do in life. Is managing a relationship is not tough if you really want to do it. Like you asked me a question about social media, according to me, has done both good and bad. Good in a way that we are more aware about what people feel. We feel oneness somewhere with other person. If you are feeling something, you are sharing it, then the other person is also feeling the same thing, then you feel connected. You feel, I am not the only one who's suffering with this. You feel oneness with others. On the other hand, if somebody is doing something negative, for example, somebody is not having a good marriage and somebody is going through a struggle which is genuinely a struggle, but in my case it's not so big, but sometimes I get influenced. I affirm, silently I affirm and make it big. To put it in simple words, sometimes what happens is, if I see a social media, let's say Instagram, if I'm scrolling on Instagram and I see people talking about happy marriage, happiness, and this is what my husband does to me, this is what my husband, my kids do for me, this is how my in-laws are. It could be both positive and negative. What you absorb is where your life leads. Somewhere in your subconscious, everything that you see, you absorb it. And once you absorb it, unknowingly you start affirming it. So if I see someone very happy, I
raise the bar of happiness in my life. If, for example, somebody is going on a holiday, I am going to Goa, they are going to Dubai. Now, I want to go to Dubai. It's not that I should not go to Dubai, but कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार मैं वो नहीं कर पा रही हूँ. सो उसको सही डायरेक्शन में लेना एक सोशल मीडिया को बड़ा ज़रूरी है. आप उसको इंस्पायर होने के लिए लो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसको लेकर सल्क करो कि यार शिट हम तो सिर्फ गोवा जा पा रहे और हम गोवा भी ना एंजॉय कर पाएँ, तो वो बेकार है. तो सोशल मीडिया को राइटली यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है और राइटली समझना बड़ा ज़रूरी है. वो तब होता है जब हम अंदर से हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में, तो हमें सब चीज़ें अच्छी लगती हैं. आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो, बट अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई चीज़ रिलेशनशिप में ख़राब है तो हर चीज़ ही बुरी लगती है. एक और बड़ा मेजर एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया. इफ़ यू वांट टू सी योर रिलेशनशिप, नो जस्ट सी कि आप एज अ कपल एक दूसरे को क्या रील्स भेजते हो. ये रील्स भेजना बड़ा आजकल ना ट्रेंडिंग है, और यू नो इट्स लाइक अगर वो मुझे रील नहीं भेजते तो इसका मतलब वी आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. सो जस्ट ऑब्जर्व कि एक दूसरे को कैसी रील्स भेजते हो. क्या सिर्फ नैगिंग वाली रील्स भेजते हो? क्या सेंशुअल रील्स भेजते हो? क्या एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ हॉट लड़कियों की रील्स भेजता है, जो है बहुत पॉपुलर है कि मतलब बॉयज यू नो स्क्रॉल थ्रू व्हेन दे गेट good looking girls के pictures, even if film stars, you know, in not so comfortable clothing, which maybe which could be a beach wear or anything which you know men get attracted to. अगर वो भेज रहा है तो वो क्या mindset है? अगर वो एक रोमांटिक सीन भेज रहा है, उसका एक अलग मतलब है दोनों के रिलेशनशिप में. अगर कोई सिर्फ नैगिंग वाली भेज रहा है, या अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ ऐसी रील्स भेज रहे हैं जो बच्चों को कैसे बड़ा करना है या बच्चों को कैसे सिखाना है, उसी की रील्स भेजते रहते हैं. या फिर जैसे मेरे हस्बैंड मुझे सारा टाइम खाने की रील्स भेजते हैं कि बिकॉज उनको पता है कि ये खाना नहीं बनाना इसको पसंद, तो यू नो ही विल कीप सेंडिंग मी, तो ये ट्राई कर. सो ही कीप्स. It depends what you share on social media with each other. That also defines your relationship a lot. So social media as a whole is important, but should be taken in the right way. All right. अब जैसे आपने बोला कि a lot of guys also share pictures of certain females which you know एक men perspective से वो attract होते हैं और वो लड़कियों को भेजते हैं. might be possible कि वो चाहते हैं कि ये इसको देखे और you know she also tries to become like that. अब क्या ये एक वजह हो सकती है कि रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज का कारण भी सोशल मीडिया बन सकता है? बहुत होती हैं. कहीं ना कहीं डाउट आता है माइंड में. एक सबसे पहली बात, if you are sending a photo or a video of a 30, you know what you call it as a hourglass figure, 36, 24, 36 to your little plumpy girlfriend, उसके अंदर सेल्फ वर्थ खत्म हो गई, उसको अपने लुक्स पे डाउट हो गया, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फॉर द लाइफ टाइम डेवलप हो गई कि ये इस चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव है जस्ट बिकॉज मैं वो नहीं हूँ, या तो मैं वो बनूँ, नहीं बन पाई तो ही माइट जस्ट गो. सो एक लाइफ टाइम इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है आपके माइंड में, जो बहुत मुश्किल से जाती है. बिकॉज वी से ना दैट योर एक्शन स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स. सो हाउ मच सो एवर यू से दैट आई लव यू, बट यू लव दैट फिगर. आई लव द पर्सन इन यू, बट यू लव दैट फिगर. सो वो एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, अपने अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. एंड जब भी कोई लड़ाई होती है तो सडनली वो टॉपिक भी उठ के आ जाता है बीच में, तुम्हें तो वही पसंद है, तुम्हें तो वैसी लड़की चाहिए थी, मुझे क्यों परेशान करते हो. या लड़का बोल देगा कि यू नो तुम डाइट क्यों नहीं कर लेती, उस लड़की को देखो, उसकी वाइफ को देखो, उसकी गर्लफ्रेंड को देखो. वाई डोंट, जैसे दिल धड़कने दो मूवी में अनिल कपूर का डायलॉग था कि इस उम्र में मतलब तुम्हें
healthy food khana chahiye. I don't remember the exact lines, but what he was trying to tell his wife was that you should eat healthy because other people eat healthy or he himself eats healthy. So the wife replies, so तुम्हारी उम्र में इस उम्र का लगना is also not very good, you know. कोशिश करना कि इस उम्र के लगो. तो जब आपके रिलेशनशिप में बाहर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना, तो आपस में एक दूसरे के बीच में जब भी कोई लड़ाई या कोई भी थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट होता है ना, तो वो सारे एस्पेक्ट्स बीच में आ जाते हैं. तो उसके लिए अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए आई फील, ये मेरा मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट वो रील्स भेजो जैसा आप अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हो. करेक्ट. सो बेसिकली करेक्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया. करेक्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया. नाउ इफ यू पॉइंट टू सोशल मीडिया, तो हम इंटरनेट को एक तरीके से कह रहे हैं, और अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो हम आज के डेटिंग एप्स को इग्नोर नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. सो व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल हु आर लोनली आउट देयर? ऐसे भी लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में और परेशान हैं. सो आर दीज डेटिंग एप्स रियली हेल्पिंग or hindering, I would say, relationships? Not just relationships, even long-term relationships. See, dating apps, social media, or anything else, going out to clubbing, partying, drinking, even for that matter, smoking. Everything, if done with a happy mind, is okay. If you're internally happy, you're doing all these things. You are scrolling on dating apps, you're scrolling on Instagram, you are going out and partying and clubbing and drinking. Everything is okay if you're happy inside. If you're doing any of this just to kill your loneliness, then no, none of them are for you. So, first, heal yourself. It is very important to be happy from inside, feel good for yourself, than looking for a validation from outside. हम अपनी डिस्प्ले पिक्चर क्यों लगाते हैं? ताकि लोगों को अच्छी लगे. हमें तो नहीं, हमें तो अपने शीशे में देख के पता चलता है ना हम कैसे लगते हैं. बट हम जो डीपी लगाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, आपने कभी अपनी ब्रश करते हुए डीपी लगाई है? No. कोई भी नहीं लगाएगा ना. दैट इज रियल यू. बट वो हम लगाएंगे नहीं. हम वो लगाएंगे जो हम बेस्ट हैं. हमें ना बाहर से वैलिडेशन सबसे पहले चाहिए होती है. सबसे पहले अपने आप को वैलिडेट करो. आर यू हैप्पी? Are you happy with your eyes? Are you happy with your face, your color, your body, your anything and everything, your relationships around you? I see a lot of people, especially girls, who have not so good relationship with their mothers. It's a very, very common this thing nowadays. उससे क्या होता है? With time, girls especially develop a lot of insecurities because mother से validation नहीं मिली, father से भी somehow कम ही मिली, तो बाहर से ज़्यादा ढूंढने के चक्कर में गलत relationships में पड़ जाते हैं. तो चाहे आप Bumble यूज़ करो, I mean there are many, I just know Bumble because वो बहुत ज़्यादा popular है. But जो भी यूज़ करो, अपने आप को पहले खुश करो, उसके बाद जो ढूंढोगे वो भी अच्छा मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा उसमें भी लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं तो बढ़िया ही हूँ. करेक्ट. मतलब अगर किसी ने रिजेक्शन दे भी दी, गुड फॉर यू, आई डोंट केयर, यू आर हैप्पी. तो जस्ट बिकॉज आई नो पीपल हु आर married through dating apps. I know people who have had bad experiences also. So I had a call with one of my client who met a girl through one of the these dating apps. 4 months they were dating each other, and the guy had not seen the girl, as in on a video call, and he's in love, and the girl is not ready to come live on the camera, and he said, "What should I do?" I mean, it is so. He doesn't even know whether he's talking to a girl or a guy, or a 90-year-old auntie sitting at home just killing her loneliness. So be aware of what you are doing, what you are getting into. And I should not be, missing on this, that the guy is staying abroad, away from the family, lonely,
struggling in life, just looked for a quick solution on one of the social media applications, and first thing that came was this girl, and he started dating. And he has transferred money to her. He has done many things for her without even looking at her face. We talk about big scams कि कोई कॉल करेगा आपको और आपका सारी बैंक डिटेल ले लेगा. ओपनली लोग स्कैम कर रहे हैं डेटिंग एप्स के ऊपर. तो खुद समझदार बनो, सतर्क रहो. आई थिंक दिस इज व्हाट टुडेज वर्ल्ड इज. You have to be aware about yourself and your surroundings. Great. कुछ भी बुरा नहीं है, ना सोशल मीडिया बुरा है, ना डेटिंग एप्स बुरी हैं, अगर आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में हो तो. So when we talk about the right frame of mind, and before we move into the physical intimacy between our couple, आज का बहुत ही ज़्यादा fast paced world है. Everybody are running and they want to achieve a lot of things in a very short duration. Absolutely. Whether it be a female, a male, anybody, a boy or a man, anyone. So अगर हम बात करें, how would you suggest a couple can maintain their emotional intimacy in this fast going world? Okay, tell me, what is emotional intimacy according to you? Where you can at least understand and connect with each other's thoughts. Exactly. Just be on the same pace. Even if the pace is little haywire, you balance it out. If somebody, it's as simple as that. Do you talk? If you talk, what do you talk? In 24 hours each day, what do you talk? Do you only talk about work? Do you only talk about plumbers? Do you only talk about electricians, bank transfers? Or do you ask, आपने खाना खाया? आप कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? Basic conversation. हम बात ही नहीं करते हैं. I know couples जिसको मैंने अगर आज बोला कि you talk this to your partner, she's like, I'll look for a good time. I said, what is a good time? There is no good time. You are together, this is a good time. When you will not be in each other's life, that will not be a good time. Talk. इमोशनल इंटीमेसी ना बहुत बड़ा वर्ड बन गया है. पहले के टाइम पे जब हस्बैंड यूज्ड टू कम होम ना, तो वाइफ्स खाना बनाते बनाते ही ना सारी बातें बता दिया करती थी. किचन में खाना बना रही हैं, साथ साथ सारी बातें हस्बैंड को डाउनलोड दे दिया. हस्बैंड खाना खाते खाते सारा डाउनलोड दे देते थे. वहीं इमोशनल इंटीमेसी हो जाती थी. उसके बाद दे वुड गो टू द बेड, डू देयर थिंग एंड स्लीप. There was no planned time for emotional or physical intimacy. क्या होता है physical? बातें करो. That is all anybody needs. Any relationship. Emotional intimacy हर relationship में ज़रूरी है. Physical intimacy हर relationship में ज़रूरी है. I should be comfortable to hold your hand and give you a warm hug. That कोई बात नहीं, हो जाएगा, साथ में कर लेंगे. It's okay. Physical intimacy is not just sex. मतलब it is so funny that people call. Correct. हर चीज को गंदा बनाना बड़ा आसान है कि आप अब क्या करें, सारा दिन हाथ पकड़ के बैठे रहें. ऐसे नहीं होता. आपने कभी पकड़ा है? I know lot of men who, including my husband, who when leaving for office, he would just come close to me. Even if I'm sleeping and he's going to work, he'll come close to me, touch me and say, I'm going for work. For whatever reasons. I'm sleeping and I'm not up, I'm not well, or whatever it is. So it's not about that आपने एक सेक्स करके ही फिजिकल इंटीमेसी अचीव करनी है, या फिर बड़ी डीप कॉन्वर्जेशंस करके उसके पास्ट के बारे में जब तक खुरेद नहीं लोगे जब तक आपकी इमोशनल इंटीमेसी नहीं होएगी. ऐसा नहीं है. आप रोज की बातें तो शुरू करो. आप बात ही नहीं करते हो. वो ऑफिस चले गए, आपको पता ही नहीं वो पूरा दिन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. या हस्बैंड को पता ही नहीं वाइफ पीछे से क्या कर रही है पूरा दिन. जैसे जैसे ये गैप्स बढ़ते जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते जाते हैं. आप एक मेरा ना क्लाइंट है, बड़े स्वीट कपल है वो.
I don't know, I'm sure when they'll watch it, they'll say, "Ma'am, आपने हमारे बारे में बात करी." So they both work. So the guy drops the lady to her, office, and he goes to his work. When he reaches his office, he always messages her, "I have reached." क्या फ़र्क पड़ेगा, पहुँच ही जाता होगा ना रोज, लेकिन एक बताने में एक कनेक्शन फील होता है ना, वो एक, it's just that how innocently that you connect with the other person. प्लान करके कुछ भी नहीं होता. वो कहते हैं ना कि प्लान करके सिर्फ शादी वाले दिन ही फर्स्ट नाइट मनाई जाती है, उसके बाद इट हैज़ टू बी natural every day. It cannot be like, tonight we're gonna do it. No. It has to be natural. It has to come natural to you. The love has to come natural, not just with your partner, in any relationship. If the love naturally doesn't come, if you have to plan your love, then it's not love. अगर आपको कॉन्वर्जेशन किसी से प्लान करके करनी पड़ेगी, चलो आओ आज बैठ के बात करते हैं, तो वो पॉडकास्ट होता है. वो कॉन्वर्जेशन नहीं होती, वो इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती. It's as simple as that. Since you mentioned extramarital affairs, so one thing that always comes in my mind is I am not against any mindset कि cheaters गंदे होते हैं, ये है, वो बहुत बात की बात है और वो situation पे depend करता है. But what actually drives people to cheat? What actually drives them to get into some affair knowing, पता हर किसी को होता है कि वो गलत कर रहे हैं, कि हाँ उनकी वाइफ है, उनकी गर्लफ्रेंड है, ऐसा क्या उनके दिमाग में आता है that they cheat? And one thing that is associated with this is, can a relationship actually recover after this? Yes, it can. एक वो ऐड है ना कुरकुरे की, टेढ़ा है पर मेरा है. सो अगर आपके माइंड में वो थॉट प्रोसेस है ना, तो आप कर जाते हो. आप फॉरगिव भी कर जाते हो, मूव ऑन भी कर जाते हो, साथ में रह भी लेते हो. सो इफ आई से दैट फॉरगिवनेस, अगर आपने सोच लिया कि फॉरगिव करना है तो हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं इसको होल्ड करके रखूंगी एंड आई नो इट इज़ गोना हैपन अगेन, तो वो दोबारा फिर होगा, बिकॉज यू अफर्म इट एवरी डे. आप डिसाइड कर लो फॉरगिव करना है, फॉरगिव करो, मूव ऑन करो. रिलेशनशिप में किस वजह से वो हुआ, आप एक बात बताओ, अगर फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप को चीटिंग करता है? No. कोई नहीं करता. क्यों नहीं करते? बिकॉज सब कुछ दे रहे होते हैं एक दूसरे को. 6 months के बाद, 1 year के बाद, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो और वो आप ये सोचते हो कि इसने कहाँ जाना है. करेक्ट. तो जहाँ वो टाइम पूरा होने लगता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, तो आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो अपने सामने वाले को. हर दिन को ऐसे जियो कि पहला दिन है एक दूसरे के साथ, कभी चीटिंग नहीं होएगी. अब कई लोग बोलते हैं अब क्या करें, क्या पहले की तरह मतलब रोज़ लेकर जाएं? क्यों नहीं लेके जाओ यार रोज़ घर पे, लेके तो जाओ. अब बट अगेन, अगर हम रिलेशनशिप्स को हर रोज़ इस तरीके से जिए कि हमने इसको संभालना है, तो हम, इट्स अ वर्क दैट यू हैव टू डू एवरी डे. इट्स नॉट, आई मीन, समथिंग दैट आपने करा और करके साइड पे रख दिया और वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलता रहेगा. नहीं, ऐसे नहीं होता. चीटिंग कहाँ होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, when you get married, first, second year, you plan children, and mother, being a mother, a girl has this inbuilt thing, I'm a mother, I'm going to be a mother, I'm going to be the best mother. So वो अपना 100% बच्चे की तरफ ले जाते हैं. हस्बैंड थोड़ा टाइम टी करता है, उसके बाद में वो गिव अप कर देता है. कुछ लोग दोस्तों में बिजी हो जाते हैं, कुछ अल्कोहलिक हो जाते हैं, कुछ काम में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं. इसमें ना मेरी मदर इन लॉ का बड़ा रोल था. तो माई हस्बैंड लव्स टू पार्टी, ही लव्स टू गो आउट.
So my mother-in-law always used to tell me, even if I had my first child, she always used to tell me, तू साथ जा, तू साथ जा, साथ जाना चाहिए. कभी भी मेरे हस्बैंड को ये नहीं लगा कि वो मेरे बिना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं. हम साथ में ही बराबर का एंजॉय करते थे. तो कभी वो ज़रूरत ही नहीं लगी कि बाहर अकेले जाएंगे तो ज़्यादा एंजॉयमेंट होएगी. ऐसा नहीं है दैट ही डजंट गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, बट वो एक ज़रूरत नहीं लगती उसकी. क्योंकि सेम गोज विद मी. इफ आई वॉन्ट टू गो आउट विद माई गर्ल फ्रेंड्स, आई कैन गो आउट, बट आई डोंट फाइंड द नीड ऑफ इट. हो रहा है तो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि यार बड़े टाइम हो गया, चलो प्लान बनाते हैं, गर्ल्स ट्रिप नहीं कराया, गर्ल्स के साथ बाहर नहीं गए. कोई नीड नहीं लगती उसकी. बाहर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं लगती. अभी मैंने ना एक मूवी देखी थी, खेल खेल में. उसमें अक्षय कुमार का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि शादी के बाद ऐसा नहीं होता कि बाकी सारे लोग अगली लगने लग जाएंगे. जो जितना सुंदर है वो उतना ही सुंदर रहेगा. लेकिन अगर आपका रिश्ता पूरा है ना, तो आपको बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब आपके रिश्ते में अधूरापन, एम्प्टीनेस आने लगती है ना, तब आप वो एम्प्टीनेस बाहर से फिल करने की कोशिश करते हो. तो जैसे मतलब एक मूवी थी विच वॉज बेसिकली विच यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन थिंग, रुस्तम, कि जो शिप पे जाते हैं 6-6 महीने के लिए, उनकी वाइफ्स, बिकॉज दे फील दैट वैक्यूम कि कोई है नहीं, बात करने के लिए नहीं है. कहीं ना कहीं आप वो वैक्यूम फिल करने के लिए उस जगह पे किसी और को लाके खड़ा कर देते हो. समटाइम्स यू रिग्रेट. उसने रिग्रेट किया, उसने मतलब अपोलोजाइज भी करा, अक्षय कुमार ने फॉरगिव भी करा, वो रिलेशनशिप होपफुली ठीक भी चला, हमें तो हैप्पी एंडिंग ही दिखाई थी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को पूरा रखोगे, अगर लड़ाई है तो भी आप दोनों की है, प्यार है तो भी आप दोनों का है, बचपना है तो भी आप दोनों का साथ में है, अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स के साथ में जब कोई बात करनी है, अगर आप एक साथ होके चलोगे तो देयर इज़ नो लुक बैक. बट अगर आप किसी भी एक पहिए को थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो वो कहीं और कोई और स्टेपनी ढूंढने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप हिलेगा ही हिलेगा. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे ही होंगे. सो आई थिंक ये था हमारा एक पर्सपेक्टिव जहाँ पर लोग शादी कर लेते हैं. अगर हम उनकी बात करें जहाँ अभी तक शादी नहीं हुई है, हम अगर यंग अडल्ट की बात करें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मिसमैच्ड गोल्स होते हैं, मिसमैच्ड प्रायोरिटीज़ होती है कि मे बी द गर्ल इज आफ्टर द गाय की शादी करनी है और लड़का कह रहा है कि मुझे तो करियर बनाना है, या फॉर दैट मैटर लड़की करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, एंड अ गाय वांट्स टू वांट्स अ बहू फॉर हिज मदर. सो ऐसे केसेस में जब कपल के मिसमैच्ड गोल्स हैं या प्रायोरिटीज़ हैं, तो इन चीज़ों को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, या व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? If you can balance it, nothing like it. Again, in every relationship, communicate. You come on a common platform, whether it is about family not agreeing or having a different career, like you said, having different career goals in life. You communicate. You come on a common platform. अगर आपको लगता है कि ये मैच होता है तो ही करो, अगर नहीं मैच होता, लॉन्ग टर्म के लिए मत कमिटमेंट करो. आजकल की जनरेशन इंक्लूडिंग यू, हमें ना हर चीज़ क्विक चाहिए. ठीक है, 30 मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि 30 सेकंड से ज़्यादा का अगर कंटेंट है ना तो कोई देखना नहीं चाहता. 5 सेकंड में अगर नहीं इम्प्रेस कर पाए तो स्वाइप अप. ठीक है, लड़के की फोटो देखी, अगर फोटो में अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तब तो प्रोफाइल पढ़ेंगे, नहीं तो स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट, वट एवर इट इज. आई डोंट नो वो स्वाइप राइट में अच्छा होता है, लेफ्ट में अच्छा होता है, बट वट एवर. सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इमीडिएट चाहिए सब कुछ. अभी बताओ क्या करना है. समझो, हमारे टाइम पे बिना मतलब हमारे टाइम पे तो चलो फिर देख दाख के शादी करते थे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो बिना देखे भी शादी कर लिया करते थे. उनकी भी चल ही रही हैं, फर्स्ट क्लास चल रही है. मतलब दादा दादी तो मैंने किसी के डिवोर्स नहीं सुने. नहीं, आज के रिलेशनशिप से बेटर ही चल रही है. दादा दादी किसी के डिवोर्स नहीं सुने. ट्रू.
दादाजी के अगर एक्स्ट्रा मेटल पे रहे होंगे तो दादी ने सेटल कर ही लिया होगा इवेंचुअली कि कहाँ जाएंगे, आएंगे तो घर ही आएंगे ना। एग्जैक्टली। तो आजकल ना हमें कोई एक गलती करता है, हमें लगता है यार नेक्स्ट स्वाइप। ऐसे नहीं होता। रिलेशनशिप्स को टाइम देना चाहिए। इवन इन फ्रेंडशिप किसी ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम कहते हैं तू छोड़, नेक्स्ट, हम नया ग्रुप बनाने पहुंच जाते हैं। आज किसी से कॉलेज में कोई बात हो गई, आई एम नॉट गोना लुक एट इट, शी इज अगली, शी इज टॉक्सिक। मतलब इतना कॉमनली हम ये टॉक्सिक वर्ड यूज करना शुरू कर चुके हैं अब कि किसी ने आपको कुछ एक दिन भी बोल दिया ना, शी इज सो टॉक्सिक। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज टॉक्सिक? टॉक्सिक किल्स यू, that girl is not killing you. Toxic is a very, very hard word which is thrown away so casually these days that it has become toxic. Actually, this brings up my next question, which is related to this only. और अभी इस बात के बाद तो मैं यही सबसे पहले पूछूंगी कि is there something called as toxic relationship as well? And if yes, what are the signs of it? Toxic relationship, ideally, until and unless the person doesn't disrespect you, they're not toxic. किसी को टोकना कि तुम कम कपड़े, मतलब ढंग के कपड़े पहनो, is not toxic. किसी को ये बोलना कि तुम रेड लिपस्टिक नहीं, न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा लो, is not toxic. किसी को ये पूछना कि आप घर कितने बजे पहुंचोगे, एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कि आप घर कब पहुंचोगे, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आप घर पहुंचोगे देन ओनली आई विल स्लीप, आई विल वेट फॉर यू, आई विल टॉक टू यू ऑन द फोन व्हेन यू आर ड्राइविंग बैक. दीज आर नॉट टॉक्सिक थिंग्स. दिस इज व्हाट इमोशनल इंटिमेसी इज. गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, दिस इज इमोशनल इंटिमेसी. हमें वो तो बिल्ड ही नहीं करनी, उसको तो हमने टॉक्सिक बना दिया है. टॉक्सिक इज जब आप रिलेशनशिप में ना एक दूसरे को लड़ाई के टाइम पे ऐसा कुछ बोल जाओ जो आप खुद बाद में रिग्रेट करो. दैट इज वेयर द टॉक्सिक रिलेशनशिप कम्स. जब हम, जो आपको सबसे ज्यादा बात हर्ट करती है ना, अगर मैं आपके रिलेशनशिप में, मतलब लड़ाई के बीच में आपको वही बात बोलूँ ना, दैट इज टॉक्सिक. हमारी लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, एंड मैं आपको एकदम से बोलूँ यू आर नॉट इवन मैरिड, हाउ डू यू नो व्हाट अ रिलेशनशिप इज? यू बी लाइक, लिसन, आई वांट टू गेट मैरिड. नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? तो इफ आई हिट द थिंग दैट हर्ट्स यू मोस्ट in a heated conversation, that is toxic. If I disrespect what you have told me in the past about your life, if I hit that thing in a heated argument, that is toxic. And yes, of course, when you talk about relationships in terms of couples, disrespect, abusing each other is not right. Raising hand is not right. There are so many women I get a call from that they are beaten up. That is toxic. Educated people, highly educated people, even today raise their hand on their partner. That is toxic. एक दूसरे को बेबी खाना खाया is not toxic. It is emotional intimacy. It is highly misunderstood. वो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है इज नॉट टॉक्सिक. वो प्यार करती है इसलिए पीछे पड़ी रहती है, अदरवाइज पीछे पड़ाने के लिए तो बहुत सारे बैठे हैं. आई थिंक इसके बाद ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ही किया होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम हाथ उठाने को ना कर ले, अब्यूजिंग की बात करें तो आज के लिए बहुत कॉमन है. बिल्कुल कॉमन. तो किसी ना किसी ने जरूर अब्यूजिव लैंग्वेज अपने पार्टनर के साथ यूज करी होगी. हो सकता है कि आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर, like the way you explained, they might want to repair it. How can they do that? Ideally, हम okay, एक ना हमें, I'm a very big follower of Jaya Kishori ji, so I watch a lot of her, and उनकी ना एक बात मुझे I remember, and I'll just share it here. बाहर के लोगों से हम बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं. अगर आज आपने गुस्से में अपने बॉस को अब्यूज़ कर दिया, कैसे रिपेयर करोगे? अपोलोजाइज करके,
फ्यूचर में ना करके। तो कहते अब घर वालों के साथ भी अच्छे से बात करें। तो जया किशोरी जी वेरी वेल सेड, हाँ घर वालों से सबसे पहले अच्छे से बात करनी चाहिए। सबसे पहले अपने पार्टनर से अच्छे से बात करो, फिर बाहर जाके अच्छे से बात करना। सो हम कई बार इस चीज़ को बहुत ग्रांटेड लेते कि आपके तेरे से भी ढंग से बात करूँ मैं। हाँ, मुझसे ढंग से बात करो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं ही हूँ जो पूरा टाइम पिलर की तरह तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आजकल अब्यूजिव हो जाती हैं। लड़कियां भी लड़कों को टॉक्सिक बोल देती हैं, लड़कियां भी बोल देती हैं बड़ा चिपकू है, सारा टाइम फ़ोन करता रहता है, मुझे तो टाइम ही नहीं देता। एंड उनको ये समझ नहीं आ रहा जब वो नहीं होगा तो वो क्या फील करेगी, जो कई फील करती हैं इवेंचुअली। आई हैव कम अक्रॉस गर्ल्स who regret leaving their ex just because they thought that he's too demanding in terms of time and efforts and everything, and they regret after some time that you don't get it in the outer world today. People don't have time. सबको अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सबको फ़ोन चलाना है, सबको पार्टीज करनी है, सब कुछ करना है, एक दूसरे को कपल को टाइम नहीं देना। यू आर गोइंग आउट ऑन अ पार्टी एंड यू कीप योर फोन डाउन सो दैट योर बॉयफ्रेंड डजंट कॉल यू, और यू डोंट सी द फोन, और यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड। व्हाई नॉट? वो इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड कर रहा है, फिर आप बाद में बोलोगे कि इमोशनल इंटीमेसी तो है नहीं हमारे बीच में, इसलिए हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। सो टॉक्सिक ना हम बनाते हैं उसको, एवरी डे कुछ ना कुछ करके हम रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं। रिलेशनशिप शुरू में कभी भी टॉक्सिक नहीं होता। करेक्ट। हम उसको एवरी डे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम उसको टॉक्सिक बनाते हैं। आजकल एक यंगस्टर्स में ना एक ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा है कि दे वांट टू ट्राई। इवन टुडे देयर आर पीपल हु स्टार्ट द रिलेशनशिप इन स्कूल टाइम। जब तक कॉलेज में आते हैं रियलाइज़ होता है कि शिट यार, मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करा, मैं तो इसी के साथ ही रह गया या रह गई, मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करा। सडनली कॉलेज में आके, और मे बी आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, और मे बी आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग, दे फील आई वॉन्ट टू ट्राई, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। सो दे स्टार्ट डूइंग stuff around. They will start things like situationship, benching, and this and that. So all of this happens when you're in a relationship for a longer time, and you feel I want to explore a little bit. You suddenly feel I can do better. Now, I would not say that you should not never try for better options in life, but relationship को थोड़ा सा contentment के साथ में समझना चाहिए rather than just exploration. You want to it's like something like the swipe right, swipe left. इतनी जल्दी लाइफ में नहीं करना चाहिए। थोड़ा हर रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ में हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ में हो। अगर आज पेरेंट्स ने कहीं जाने के लिए मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स टॉक्सिक हो गए। तो समझो पेरेंट्स ने वो टाइम निकाला हुआ है। I'll give you a small example. Abhi recently, me and my husband, we were traveling, and my kids were home. So they said, we want to stay at home. I said, no, you will not stay at home. You will go to, grandma's house. You'll stay there. No, we'll stay at home. This, that. A lot of discussions. Why can't we stay? These are home. So my daughter is 9-year-old. She's trying to, convince me that I can stay alone with my son, of course, who's 16. So I said, no, that is not happening. And we kind of convinced them that during the day you can be here because they have friends and, they have their own rooms and everything. Night, if you want to go and, day you can be here. Night, you have to go and stay with Dadi. That time, I was like a toxic parent to them. I'm sure I was. They must have felt, again, I'm using the word toxic very, casually here. But they must have somewhere felt कि मम्मा हमारी समझती नहीं है, सुनती नहीं है. 31st early morning, in our house, we had a fire. And it was at 5 o'clock in the morning.
My husband just got up and, we kind of managed the fire and everything. 31st night, I sat with my children. I told them, now you know why I don't let you alone in the house at night. Anything can happen. So, कई बार ना, बिकॉज हम यंग हैं, हमें नहीं समझ में आता, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं, हम उस टाइम पे फिट ऑफ एंगर अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ बोल भी जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश नहीं करते, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते. हमारी इनसिक्योरिटीज़ ठीक है, हमारे पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ का क्या हुआ? करेक्ट. एंड एक और चीज़ है विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जॉइंट फैमिली सेटअप होता था. तो दादा दादी ना हमारे थेरेपिस्ट होते थे. मम्मी ने कुछ बोला, दादी को जाके बता दिया, दादी अपने आप मम्मी को सेट कर लेंगे. आजकल के टाइम पे या तो दादा दादी साथ नहीं रहते, या दादा दादी भी इंस्टाग्राम में बिजी हैं, या फिर दादा दादी कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, कि हमने मतलब बच्चे को ठीक करने का ही ठान लिया, उन्होंने ग्रो नहीं करा विद टाइम. अगर बच्चे को मना करना है तो उसका मना करने का तरीका है कि आजकल की जनरेशन, पहले के टाइम पे मना करने में सिर्फ दिखा देते थे गुस्सा, आंखें दिखा देते थे, तभी मना हो जाता था. आज के टाइम पे आंखों से बच्चे नहीं रुकते. आपको स्ट्रैटेजिकली बच्चों को समझाना पड़ता है चीज़ों को, बिकॉज इतना ओपन है. आपने बोला कि यू आर अगली और यू डोंट नो हाउ टू बिहेव. वो बिहेव का जो गूगल करेंगे और उसके जो सिम्टम्स और उसका जो वो सब कुछ निकल के आएगा उनके लिए, वो हमारी थॉट प्रोसेस से बहुत दूर है. एनीथिंग यू से टू किड्स दीज डेज, दे गूगल एनीथिंग, दे हियर अ वर्ड, दे गूगल. मेरे तो घर में सिरी लगी हुई है, तो कुछ भी अगर कोई नया वर्ड आता है तो माई डॉटर इन अ मिनट शी आस्क्स, हे सिरी व्हाट डज दिस मीन. शी विल हैव हर ओन वर्जन, नॉट अ मदरली वर्जन. सो दादी वाला जो वर्जन था ना समझाने का, अगली का, वो अलग था. छोड़ना, उसको अगली लग बोलने दे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो हमारा राजा बेटा है. सिरी ने तो अगली का अलग ही मतलब बताना है. हो गए आप डिप्रेस्ड क्योंकि आपको बाहर से वैलिडेशन नहीं मिली. तो ये ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग घर में चाहे बच्चों से चाहे पेरेंट्स से बात नहीं करते. अगर आपको आज कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया, हमारे टाइम पे क्या होता था, आई डोंट नो अब क्या करते हैं बच्चे, मेरे तो आज भी यही करते हैं, किचन की शेल्फ पे चढ़ के बैठ जाते हैं और फिर मम्मी जब खाना बना रही होती है सारा अपना डाउनलोड दे देते हैं. आपको पता है आज ये हुआ, आपको पता है. लाइक व्हेन आई वाज लीविंग फॉर द पॉडकास्ट इन द मॉर्निंग, आई वेंट टू माय डॉटर्स रूम, शी वाज गेटिंग अप, शी टोल्ड मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड येस्टरडे, ये किया वो किया. सुनो बच्चों के स्टोरी बुक पढ़ाने से बच्चे आपसे कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे. बच्चों की स्टोरी सुनो, अपनी स्टोरी सुनाओ उनको, क्या आपकी एक्सपीरियंसेस हैं. मतलब हम जैसे दादी नानी की कहानियां कहते थे जो हमने सुनी है, वो आज बच्चों के पास है ही नहीं सुनने के लिए. ट्रू. तो वो एक ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. फ्रेंड्स बाद में आते हैं, कई लोगों के पहले भी आते हैं, बट आइडली बाद में आने चाहिए. सबसे पहले आप घर में पूरे होने चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे वो जॉइंट फैमिली है, चाहे आपका चाचा जी के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है, चाची के साथ में किसी के साथ में भी रिलेशनशिप अच्छा है. यू शुड हैव अ वेंटिंग पॉइंट. जब तक वो वेंटिंग पॉइंट नहीं होगा ना, यंग बच्चों के अंदर रिलेशनशिप को लेकर समझ सूझबूझ नहीं आएगी. जब हम कहते हैं बच्चों के सामने मत लड़ो. क्यों मत लड़ो? बच्चों को तो लगेगा कि लड़ाई होती ही नहीं दुनिया में. अगर लड़ाई होती है तो मतलब वो तो नॉर्मल लोग नहीं होते. मेरा ये मानना है, लड़ो, बच्चों के सामने लड़ो, लेकिन सुलह भी बच्चों के सामने करो. हर चीज़ बच्चों को दिखनी चाहिए कि आप यू फाइट, यू गेट बैक टुगेदर एंड यू कम बैक स्ट्रोंगर. हम कहते हैं
बच्चों के सामने मत लड़ो, बच्चों के सामने ये मत करो, बच्चों के सामने हाथ मत पकड़ो. No, a lot of people are a little uncomfortable in holding their partner's hand in front of. Like बच्चे देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? आजकल के बच्चों को प्यार देखना है घर में. वो सिर्फ मशीन्स नहीं देख रहे चलती हुई, सिर्फ मशीन्स देख रहे हैं. पापा सुबह ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी भी ऑफिस जा रही हैं, दोनों शाम को घर आ रहे हैं. वेयर इज द लव? लव हम दरवाजा बंद करके करते हैं. अगर मेरे को अपने हस्बैंड के साथ में बाहर कॉफी पीने जाना है तो आई विल टेल माई किड्स that mama papa are going for a coffee, mama papa are going for a drive. Why not? And they are not going. They will always be my second priority. My husband will be always my first priority. So you teach that to children, that your partner is your first priority, not your kids, not your mother. No. जहाँ problem आती है, I think I'm going way too deep into this. शादी के बाद हम लड़के को हमेशा कहते हैं पेरेंट्स प्रायोरिटी है, पेरेंट्स प्रायोरिटी है, पेरेंट्स प्रायोरिटी है. ऐसा नहीं है, पार्टनर प्रायोरिटी है. हमेशा से पार्टनर ही प्रायोरिटी था, वो ही होना चाहिए और वो ही रहना चाहिए. आप अपने बेटे की शादी कराते हो, आप सोचते हैं मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया. अरे कहाँ से अलग हो गया? वो बेटा तो आपका ही रहेगा ना. अगर आप अपनी बहू को या अपनी डॉटर इन लॉ को जिसको लेकर आए हो, उसको अपना बेटा पूरे तरीके से नहीं दोगे तो वो अपनी फैमिली कैसे बनाएगा? करेक्ट. फिर थोड़े टाइम बाद या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, या बच्चे नहीं हो रहे होते, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि लड़की ठीक नहीं थी, ये नहीं था. अब हस्बैंड को दे तो रहे नहीं हो पूरा, फिर उसके बाद में आप बोलते हो कि लड़की ठीक नहीं है. मतलब बड़े इश्यूज हैं. मतलब छोटे 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 हर घर में देखो तो बहुत इश्यूज हैं. फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चाइल्ड टू द एल्डेस्ट इन द फैमिली, everybody has issues. There are older people who talk to me and they say my daughter-in-law doesn't let my grandson come close to me. They feel very bad, they feel very lonely. And अब तो वो सिंगल रह गए हैं, वाइफ इज गॉन, सो द ग्रैंडफादर फील्स वेरी लोनली दैट माई डॉटर इन लॉ डजंट लेट माई ग्रैंडसन कम टू मी. आई फील वेरी लोनली, व्हाट शुड आई डू? आई मीन everybody faces that loneliness in their life. Family is the only thing who brings it back. एक family, like you also said before we started, I'm a very old school person. I feel सबसे पहले आपका घर पूरा होना चाहिए, उसके बाद आपको बाहर सब कुछ अच्छा ही मिलेगा. करेक्ट. अगर आप घर से अधूरे हो ना तो बाहर जितना मर्जी ढूंढ लो. कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी में कन्वर्ट हुए हैं? नहीं होते. इवेंचुअली जो एक के लिए मतलब दूसरे को धोखा दे रहा है, वो तीसरे के लिए आपको भी दे ही देगा इवेंचुअली. कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी में बदलते हैं? नहीं बदलते, वो वहीं खत्म हो जाते हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का ना पर्सपेक्टिव चेंज होगा ये सारी बातें जानने के बाद, स्पेशली यंग एडल्ट्स. व्हाट इज योर एडवाइस टू यंग एडल्ट्स बिफोर दे एंटर इनटू अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पुश योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, be it marriage, be it just a relationship, or when you meet someone and you feel that connect, give it time. Understand, initially ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. जब आप थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हो या आप कभी किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ते हो, आपको समझ में आता है कि वो एक्चुअली रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. There are many things that one sees when they get married. Of course, how well can you communicate with each other? Are you educationally compatible or not? Because agar nahi ho, if the boy is very educated and the girl is not, kahin na kahin girl ke life mein hamesha
इनसिक्योरिटी रहेगी। जैसे कहते हैं ना, शादी बराबर वालों से करनी चाहिए, तो वो सिर्फ पैसे में नहीं देखना चाहिए, माइंड की भी देखनी चाहिए, एजुकेशन की भी देखनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस की भी देखनी चाहिए। पहले कहते थे ना कि साथ में खड़े हुए अच्छे लगने चाहिए, तो वो सारी बातें ठीक है जो पहले बड़े कहते थे, और अब हम उनको ये कह देते हैं कि पहले कहते थे। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ठीक हैं, हम आज उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके मूव ऑन करते हैं, चलो करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने के चक्कर में हम अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कि इवेंचुअली बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सोचो, समझो, गिव इट टाइम। मतलब कपड़े की तरह रिलेशनशिप्स मत बदलो। True. योर रिलेशनशिप शुड बी लाइक दैट टी शर्ट जो आपको रोज पहन के सोना अच्छा लगता है ना, दैट इज व्हाट द बेस्ट रिलेशनशिप इज। जिस रिलेशनशिप के साथ आप रोज सो सको, वो बेस्ट रिलेशनशिप है। जो आपकी नाइट सूट वाली टी शर्ट होती है ना, जो कितनी भी फट जाती है लेकिन फिर भी आपकी फेवरेट रहती है, वो रिलेशनशिप में सीरियस होना ठीक है। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए, एंड मुझे ऐसा लगता है अभी तो मेन टॉपिक मैंने आपके साथ छेड़ा ही नहीं है, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल इंटीमेसी। आई थिंक दीज टू आर सुपर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। जब हम इससे एक अलग लेवल पे जाते हैं, मुझे लगता है आज हमने सारी वो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी है जो हर कोई रिलेट कर पाएगा, लेकिन अगर इस लेवल से किसी को ऊपर जाना है ना, तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी, सेक्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन एक ही एपिसोड में। आई वुड वांट कि हमारी ऑडियंस बिल्कुल एंटिसिपेट करे इसके लिए। आई वांट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कमिंग ओवर कि फिर से बुलाया जाए नेहा मैम को, एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हाउ स्पिरिचुअलिटी, कर्मा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप्स, एंड एक्चुअली में क्या रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू सेक्स हो गया है आज के टाइम पे या नहीं। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट कमिंग, बट स्टिल आई वुड वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे। Excellent. Excellent. It was amazing. Pouring my heart out, giving my personal understanding, experience, and learnings through your channel. I'm feeling really overwhelmed. Lovely. So अब I just want you all to understand what exactly we talked about, और उससे बढ़कर I really want you guys to share it. अगर अभी तक ये नहीं समझ आया ना कि सोशल मीडिया किस लिए, तो बस यही पॉडकास्ट उठा के अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दो, बिकॉज दिस पॉडकास्ट अलोन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि कैसे एक रिलेशनशिप में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिविटी भी होती है अगर उसे सही नज़रिए से देखी जाए तो। पर इसके बावजूद भी एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बहुत डेस्परेटली मैम के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। नाउ द डिसीजन इज योर्स। आई वांट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन दिस पॉडकास्ट सो दैट आई कैन रियली कॉल हर बैक ऑन माय चैनल एंड मेक अ पॉडकास्ट ऑन spirituality and sex in relationship. Well, thank you so much for watching this episode. I'll meet you in the next episode. Till then, take care. Bye bye.